یا علی مدد. میرے بھائی تو منیور بھائی آج کل ماہ مسلمان کون ہے اس کا تمہیں سنو وچار سنت پانچ کراوے دے ماں آج سوہی مسلمان دین دار رے آج سوہی مسلمان دین دار تو منیور بھائی تو منیور بھائی پرتھم تو جیبیا سنت کیجیے سروے نیندا جھوٹنے وار ہر دم نام لیے صاحب نو ان کن مکھ تھی نہ کہیے مار رے کینے مکھ تھی نہ کہیے مار تو منیور بھائی تو منیور بھائی بیجی اندری سنت کیجیے بھائی پر استری گون سومن وار تمہیں مت چکو باولے بھائی اس کا بوجھو وچار رے بھائی اس کا بوجھو وچار تو منیور بھائی تو منیور بھائی تریجی سنت کیجیے آنکھنی ان کس اوپر کوڑی نظر مت دیکھ سروے رنگ روپ صاحب سیرجیا تین ماٹی لیکھو ایک رے
भाई, तो मुनिवर भाई चौथी सुनत कीजिए काननी, अने अलीना नाम सुनता दिन जाए, केनी निंदा बद गोई सांभळीए नहीं, तो साया संगाथी थाए रे, तो साया संगाथी थाए, तो मुनिवर भाई, तो मुनिवर भाई पांचमी सुन्नत कीजिए हाथ पगनी, दोनों मिली एक आए, किस प्राणी ऊपर हाथ न उपाड़ी ये, अने असत के ठाम न जाए रे, अने असत के ठाम न जाए, तो मुनिवर भाई, तो मुनिवर भाई पांच सुन्नत करो देही मां, अने सब ठोर ईमान राख, तो निमाज रोजा सब किए, सोही मुसलमान है पाक रे भाई, सोही मुसलमान है पाक, तो मुनिवर भाई, तो मुनिवर भाई तमे कलमा पढ़ो मुख से, गुर नबी मुहम्मद नी आलना पूजो पाए, पण नित नित गत मा जाई जिकर करे, भाई सोही मुसलमान बहिश्त में जाए रे, भाई सोही मुसलमान बहिश्त में जाए। जिंदारो सबसे पेशतर हमारे आका नामदार इमाम ज़मान
مالک دو جہان نور خداوند برحق نور مولانا شاہ کریم الحسین حاضر امام کے مبارک نام پہ صلوات پڑھیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیندارو، امام زمان کی خدمت میں اپنی پوری زندگی پیش کر کے ایک مومن کیا حاصل کرنا چاہتا ہے یا وہ کیا میسج دینا چاہتا ہے یا اس میں کون سا ایسا علامتی پیغام ہے جو دینا چاہتا ہے. اس اعتبار سے ہم جو بھی اچھے اعمال انجام دیتے ہیں یہ انہی نیک اعمال کا ایک حصہ ہے کہ مجموعی طور پر اعلیٰ قسم کی خدمات اور اعمال انجام دے کر کوئی کیا حاصل کرنا چاہتا ہے. تو شاید اس کا جواب یہ ہو کہ ہم اپنی زندگی بہترین طور پہ گزارنا چاہتے ہیں. ہم اپنی زندگی کو جتنا زیادہ ممکن ہو فائدہ مند بنانا چاہتے ہیں، پروڈکٹیو بنانا چاہتے ہیں، یا ایک ایسی زندگی بنانا چاہتے ہیں کہ جسے خدا پسند کرے. اگر ہمارا مقصد اچھی سے اچھی زندگی ہی حاصل کرنا ہے تو کیا ہمارے پاس کوئی ایسا ثبوت ہے، ہمارے پاس کوئی ایسی علامت ہے، کوئی ایسی مثال ہے کہ زندگی اگر اچھی ہونی چاہیے تو کیسی ہونی چاہیے؟ وہ کون سی زندگی ہے جو قابل قبول ہے، جو پسندیدہ ہے، جس کی تعریف کی جائے؟ اور اگر ایسی کوئی زندگی ہے جو پسندیدہ ہے، جس کی تعریف کی جائے، تو اس کی اوتھینٹسٹی کیا ہے؟ اسے قابل تعریف کہنے کا جواز کیا ہے؟ کون کہے گا کہ یہ زندگی اچھی ہے اور زندگی ایسی ہونی چاہیے؟ تو آپ کہیں گے زندگی بنانے والا اگر کسی زندگی کی تعریف کرتا ہے، اگر زندگی کو بنانے والا کہے کہ یہ زندگی اچھی ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ سب سے مستند بات ہوگی کہ ہاں جس نے ہمیں بنایا ہے وہ کہتا ہے کہ زندگی ایسی ہے. تو ہمارے پاس زندگیوں کے بارے میں جتنی مثالیں موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہترین علامت، بہترین مثال، بہترین نمونہ موجود ہے کہ تم اپنی زندگی ان کے مطابق گزارنے کی کوشش کرو. حتیٰ کہ خدا نے آپ کی عمر کی قسم کھائی، وَلَا عُمْرُكَ، اے محمد تیری عمر کی قسم. آپ کسی کی عمر کی قسم کھاتے ہیں، خدا کسی کی عمر کی قسم کھاتا ہے. گویا آپ کی زندگی کا ایک ایک پل ایسا گزرا ہوگا جسے خدا اتنا مقدس سمجھتا ہے کہ اس کی قسم کھاتا ہے. اور فرماتا ہے کہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ اخلاق کی بلند ترین چوٹی پر ہیں. ہم جس دین کے پیروکار ہیں، مسلمین، جس کا مطلب ہے اپنے آپ کو سبمٹ کرنے والا، اپنے آپ کو خدا کے سپرد کرنے والا، خدا نے قرآن میں فرمایا کہ حضور اکرم سپردگی کی چوٹی پر تھے. اور اس حوالے سے 4 باتیں بتائی گئی. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اے محمد کہہ دے کہ میری صلات، میری عبادت، ونسوکی، میرے مراسم عبودیت، میری زندگی اور میری موت، میرا جینا اور میرا مرنا خداوند تعالیٰ کے لیے. لا شریک لہ بذالک امرت، اس کا کوئی شریک نہیں، مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں سب سے پہلا مسلمان ہوں.
یا میں مسلمانی کی بلند ترین چوٹی پر. اور جب اتنی بہترین زندگی خدا نے ہمارے سامنے رکھی ہے تو آپ سب دیکھتے ہیں دنیا بھر کے مسلمان حضور کی زندگی سے کچھ حاصل کر کے اس کی تقلید کرنے اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جسے ہم سننا کہتے ہیں. آپ قرآن اور سنت کی بات ہمیشہ سنتے ہیں کہ ہمیں قرآن اور سنت پر چلنا چاہیے. قرآن سے مراد خدا کا کلام ہے، سنت سے مراد حضور کی زندگی ہے. قولہ و فعلہ و تقریرہ، حضور نے جو فرمایا، حضور نے جو کیا اور جو کرتے ہوئے دیکھ کر پسند فرمایا. آج بھی صدیاں گزر جانے کے بعد لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کی زندگی سے کوئی ایسی علامت لے لو، کوئی ایسا عمل لے لو جو ہمارے لیے چھٹکارے کا ذریعہ بن جائے، نجات کا ذریعہ بن جائے. تو آج ہم اسی سنت کے حوالے سے کچھ بات کریں. حضور اکرم کی پوری زندگی میں سے کچھ ایسی باتیں اچھی زندگی گزارنے کے واسطے سید امام شاہ نے اپنے گنان کے اندر ہمیں بتایا ہے، جس میں آپ نے 5 سنت کا ذکر کیا. 5 سنت کا ذکر کیا ہے. فرماتے ہیں کہ تو منیور بھائی آج کل ماہ مسلمان کون ہے اس کا تمہیں سنو وچار. ابھی آپ نے سنا کہ بہترین مسلمان حضور اکرم تھے، اور ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ایسا ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تم مرنا نہیں جب تک کہ تم مسلمان نہ بن جاؤ. فرمایا گیا ہے ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے اس وقت تک نہیں مرنا جب تک کہ مسلمان نہ بن جاؤ. یعنی کہ دنیا سے اس وقت تک نہیں جانا جب تک کہ اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو پوری طرح اپنے مالک کے سامنے سپرد نہ کر دو، اپنے مالک کے حوالے نہ کر دو. یہ ہے حقیقی مسلمان. تو فرماتے ہیں کہ آج کلمہ ہے مسلمان کون ہے اس کا تمہیں سنو وچار. سنت 5 کراوے دیہی ماں، آج سوہی سچا مسلمان. جو اپنے وجود میں، اپنے جسم میں 5 سنتوں پہ عمل کرتا ہے، 5 اعمال انجام دیتا ہے، آج وہی سچا مسلمان ہے. تو منیور بھائی پرتھم تو جیبھیا سنت کیجیے. اگر صحیح معنی میں کوئی سنت پہ عمل کرنا چاہتے تو فرماتے ہیں یہ سنت تمہیں بتاتا ہوں، اس پہ عمل کرو جو واقعی باطنی پاکیزگی کا ذریعہ ہے. پرتھم تو جیبیاں سنت کیجیے، سروے نندا جھوٹنے وار. پہلی سنت تمہاری زبان کی ہے، غیبت سے دور رہو، جھوٹ سے دور رہو. کسی کا برا مت بولو، پر نندا بھائی جگت کھوارے، سر پاؤں نرگے پڑی. ہمارے نگاہ دوسروں کی طرف جاتی ہے، دوسروں کے نندا کرنے سے تم پورے جہان میں خوار ہوگے اور جہنم میں جاؤ گے. اخلاق کا معیار تو یہ ہے کہ دٹھڑا دوش بھائی کسی کو نہ دیجیے تو اڑ ڈیٹھا کیوں کر دیجیے. کسی کا برا، کسی کو برا کرتے ہوئے دیکھو تو بھی برا مت کہو. ممکن ہے تمہارے دیکھنے میں کوئی غلطی ہوگی، اور اگر وہ برا کام ہے تو وہ جانے، اس کا خدا جانے، اس پہ تم کوئی ججمنٹ نہ دو. دٹھڑا دوش بھائی کسی کو نہ دیجیے تو انڈیٹھا کیوں کر دیجیے. تو دیکھے بغیر کسی پہ قصور کیسے لگا دیتے ہو، کسی پہ گناہ کیسے لگا دیتے ہو. تو زبان کی سنت یہ ہے کہ اپنے آپ کو غیبت سے روکے رکھو. بار بار قرآن کی یہ آیت بتائی جاتی ہے کہ غیبت کرنے والا ایسا ہے جیسا وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے. نندا سے دور رہو، جھوٹ سے دور رہو. سچائی پہ اس طرح عمل کرو کہ جان بھی چلی جائے تو بھی انسان سچائی پہ برقرار رہے. کبھی بھی اپنی زبان کو جھوٹ کے واسطے استعمال نہ کرے.
हरदम नाम लिए साहेब जिनू अने केने मुख्ती न कहिए मार। ये जबान का तुम्हारा रोजा, ये जबान की तुम्हारी सुन्नत कि हमेशा जिक्र करता रहे। क़यामौ व क़ुऊदौ व अला जुनूबिही। मोमिन की सिफत ये है कि उठता है, बैठता है, चलता है। यस्कुरून अल्लाह, वो खुदा का जिक्र करता है, खड़ा है, बैठा है, लेटा है। अन्य मुख्ती न कहिए मार। जबान से किसी को बुरा न कहो, किसी पे लानत मलामत न करो, किसी पे कर्ज न करो। खुदा ने ये जबान कर्ज करने के वास्ते, लानत करने के लिए, बद्दुआ करने के लिए, किसी के लिए बुरा मांगने के वास्ते नहीं दिया। जितना हो सके इस जबान से लोगों को फायदा पहुंचाओ। मौला का फरमान है कि मोमिन वो है जो मतलब बगैर की बात नहीं करता। जिस बात में दीन और दुनिया का कोई फायदा हो, मोमिन उसी वक्त जबान खोलता है, वरना मोमिन अपनी जबान बंद किए रखता है। बीजी इंद्री सुन्नत कीजिए। तुम्हारी जो दूसरी सुन्नत है वो इंद्री है। अपने हैवानी ख्वाहिशात को रोके रखो, अपने हैवानी ख्वाहिशात को काबू में रखो, कंट्रोल में रखो। मौला ने अपने एक मैसेज के अंदर इसको हॉरिबल इंस्टिंक्ट का नाम दिया। हॉरिबल इंस्टिंक्ट, अगर इसको तुमने काबू में नहीं रखा तो ये तबाही मचाती है इंसान के वजूद के। हम जानते हैं हमारे वजूद में फरिश्तगी भी है और हैवान भी है। इसका ताल्लुक हमारी हैवानी लाइफ से है, इसका ताल्लुक रूहानी और नूरानी जिंदगी से नहीं है। इसलिए उसको रेगुलेट रखना चाहिए और कंट्रोल में रखना चाहिए। बीजी इंद्री सुन्नत कीजिए भाई। पर स्त्री गवंसु मनवार। पराई औरत से अपने दिल को रोके रखो, पराई औरत से अपने दिल को काबू में रखो। स्त्री पुरुष बेबंधवा अने बेन भाईनो ने जे नजर निर्मल नहीं राक्षे तेनी जाशे नरक माहे दे। मर्द औरत भाई और बहनें हैं, इसलिए उनके दरमियान भाई बहन का रिश्ता है। जो अपनी नजर पाक नहीं रखेगा, नियत पाक नहीं रखेगा, उसका वजूद जहन्नम में जाएगा। तो फरमाते अपने इंद्री को काबू में रखो, और ये बहुत अहम इंस्टिंक्ट है जिसको काबू में रखना बहुत जरूरी है। तमे मत चूको रे बावले भाई, इसका बुझो विचार। ये एक ऐसी चीज है कि इसमें तुमसे गलती ना हो जाए, इसमें तुमसे कोताही ना हो जाए। इस बात को तुम मजबूती से अपने जहन में रखो। त्रीजी सुन्नत कीजिए आंखनी किस ऊपर कूड़ी नजरे मत दे। जो तुम्हारी तीसरी सुन्नत है वो आंख की सुन्नत है। किसी पर बुरी नजर न डालो। खुदा ने कुरान में फरमाया है वज़रू ज़ाहिरल इस्मी व बातिन। गुनाह के जाहिर और बातिन से अपने आप को रोके रखो। जाहिरी गुनाह से रोकना बहुत आसान है, हालांकि इंसान वो भी नहीं कर पाता है। जाहिरी गुनाह से बचना बहुत आसान है, क्योंकि उसमें लोग हमें देख रहे होते हैं। असल तो बचना बातिनी गुनाह से, जिसे हमें कोई देखने वाला नहीं होता और शायद हमें उसका पता भी नहीं होता। यअलमु खाइनतुल आयुन वमा तुख्फी सुदूर। खुदा ने फरमाया आंखें जो खयानत करती है और दिल जो कुछ छुपाता है, खुदा उसे भी जानता है। हमने तो हाथ से जो कुछ किया शायद दुनिया हमें देखती है, हमने आंखों से जो कुछ किया दुनिया हमें नहीं देखती है। हमने नीयत से जो कुछ किया दुनिया हमें नहीं देखती है। मुझे मेरी बुरी नीयत पे दुनिया की कोई अदालत सजा नहीं दे सकती है। किसी के लिए बुरे ख्यालात रखने पर दुनिया की कोई अदालत मुझे सजा नहीं दे सकती है। ये सजा ऊपर वाले की अदालत में है, क्योंकि बुरी नीयत दुनिया के कानून में कोई सजा नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। दुनिया के कानून में जब आप किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, अपनी नीयत को अमली जामा पहनाते हैं, तब हमारी गिरफ्त होती है। तो दुनिया के कवानीन सजा और जजा में बड़ी लिमिटेशन है, लेकिन खुदा के यहाँ
इंसान की कोई नेकी और कोई बदी छुपती नहीं है और वो उसके सजा और जजा के बगैर रहती नहीं। हमने हाथ से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, हाथ से किसी का माल नहीं खाया, लेकिन दिल में हमने बदनीयती की तो खुदा के दरबार में वो चीज लिख ली जाती है। इसलिए फरमाया गया है कि जाहिर के मुकाबले में बातिन पर अमल करना बहुत मुश्किल है। ज़रूर ज़ाहिर अल इस्मी व बातिनुहु, गुनाह के जाहिर से भी बचो, बातिन से भी बचो। तो फरमाते तुम्हारा जो ये तीसरी तुम्हारी सुन्नत है वो तुम्हारे आंख की है। किसी को भी बुरी निगाह से मत देखना, किसी चीज की तरफ या किसी मखलूक की तरफ बुरी नजर से मत देखना कि तुम उन्हें नुकसान पहुंचाओ। सर्वे रंग रूप साहेब सिरजिया तेनी माटी लेखो एक। ये जो रंग बिरंगी दुनिया तुम्हें नजर आती है और रंग बिरंगी मखलूक तुम्हें नजर आती है, ये सब खुदा की तख्लीक है, ये सब खुदा की तख्लीक है। उसकी जो मिट्टी है वो सब एक है। तो वहदत को देखने की कोशिश करो, एक को देखने की कोशिश करो और उसमें किसी पर अपनी नजर खराब न करो। चौथी सुन्नत कीजिए काननी अने अलीना नाम सुनता दिन जाए, केनी निंदा बदगोई सांभळीए नहीं तो साइया संगाती था। चौथी सुन्नत तुम्हारे कान की है और कान का ऐसा है कि कभी आप चाहते हुए उसको बचा सकते हैं, कभी शायद हम पे इम्पोज कर दिया जाता है तो हम बच नहीं सकते हैं। इसलिए दूसरों के ख्याल करने की जरूरत है। चौथी सुन्नत तुम्हारे कान की है और ये कि उसकी सुन्नत ये है कि अलीना नाम सुनता दिन जाए, यानी जहां जितना मुमकिन हो अपने कान से अच्छी बातों को सुनो, खुदा का जिक्र सुनो, अच्छी बातें सुनो, बुरी बातों से दूर रखो। केनी निंदा बदगोई सांभड़िए नहीं तो साइया संगाती थाए। मौला उस वक्त तुम्हारे साथी बनेंगे कि तुम किसी की गीबत और बदगोई सुनो नहीं, लेकिन बाज़ औक़ात हमारी मजबूरी हो जाए। लोग हमसे पूछते हैं भाई हम किसी मजमे में बैठे हो जहाँ लोगों की बदगोई की जाती हो तो हम क्या करें, हमारा फ्रेंड सर्कल होता है। इंसान में इतना मॉरल करेज होना चाहिए, इतनी अखलाकी जुर्रत होनी चाहिए कि वहां कह दे कि भाई आप लोग ये जो काम कर रहे हैं मेरे अखलाक के मयार के मुताबिक गलत है, प्लीज कुछ अच्छी बात कर सकते हो तो करें। अगर आपको ग़ीबत ही करनी है तो सॉरी मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता। ये हमारे कान की सुन्नत है। आपको पता है कभी कभी हम जब छोटे बच्चों के साथ प्रोग्राम्स करते हैं, यूथ के साथ प्रोग्राम करते हैं, ये यूथ अपने प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं, छोटे बच्चे अपने मसाइल लेकर आते हैं कि आप कहते हैं कि हमें बुरी बात नहीं सुननी चाहिए, हमें किसी की ग़ीबत नहीं सुननी चाहिए। हमारे घर में हमारे माँ बाप हमारे साथ खाने के टेबल पे बैठ के दुनिया भर की ग़ीबत करते हैं, तो क्या हम घर छोड़ के बाहर चले जाएं? माँ बाप से हम पूछते हैं कि बच्चों को या मुझे भी जवाब दे कि हम क्या जवाब दें इन बच्चों को कि हमारे माँ बाप हमारे सामने दूसरों की बातें करते हैं और हम उन्हें कहते हैं कि आप ना करें तो कहते तुम चुप करो, तुम क्या जानो इसमें क्या है। बच्चों का जो रिलीजियस फॉर्मेशन है, जिस तरह हम उनकी रूहानी बातनी अखलाकी जिंदगी बनाते हैं, इनमें इन माहौल का हम क्या कर रहे हैं, पेरेंट्स भी घर के अंदर, उसका बहुत बड़ा दखल है कि हम कैसी जिंदगी खुद गुजार रहे हैं। क्योंकि ट्रेडिशन, संस्कार, रिवायत किताबों से नहीं दी जाती है, वो हम उनके साथ जिंदगी गुजार के ट्रांसफर करते हैं, बच्चों के हवाले करते हैं। तो जैसी जिंदगी हम गुजारते हैं जिन संस्कार के अंदर, वो संस्कार, वो रिवायतें, वो ट्रेडिशन बच्चे सीखते हैं और साथ में लेके जाते हैं। तो हम अगर अपने बच्चों को बाअखलाक बनाना चाहते हैं तो हमारे घर का माहौल बाअखलाक होना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ किताबों में अखलाक लिख देने से नई जनरेशन हमारी बाअखलाक नहीं बन जाती। और इसका सबूत हमारे सामने है कि जैसा मुआशरा होता है वैसी नस्ल पैदा होती है, न ये कि किताब में जो कुछ लिखा है वैसी नस्ल पैदा होती है। तो ये
चौथी सुन्नत के हवाले से बात की गई। पांचवी सुन्नत कीजिए हाथ पगनी। पांचवी सुन्नत बताते हैं कि ये तुम्हारे हाथों की और तुम्हारे पैरों की है, यानी दोनों मिली एक गज आए। बहुत अच्छी बातें बताई जाती है। शायद इन सब पे अमल करना हमारे लिए मुमकिन भी न हो, लेकिन जब भी दीन की कोई बात सुनते हैं, मौला की कोई बात सुनते हैं, कोई पैगाम सुनते हैं, कुछ बात अपने साथ ले जाने के वास्ते होती है और जिंदगी में अमली जामा पहनाने के वास्ते। हाथ और पैर की सुन्नत दोनों मिली एक गज आए। समझ लो कि ये दोनों मिलाकर तुम्हारे हाथ और पैर की ये एक सुन्नत है। किसी प्राणी ऊपर हाथ न उपाड़िए, ये तुम्हारे हाथ की एक सुन्नत। कि जुल्म नहीं कर, किसी पे हाथ नहीं उठाने का मतलब ये है जुल्म नहीं कर। किसी से बदला लेने की ताकत हो तो भी बदला नहीं लेना, ये इंसान है। किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना, किसी पे जुल्म नहीं करना, किसी पे हाथ नहीं उठाना, अने असद के ठाम न जाए रे, और पांव से चलकर बुरी जगह पे नहीं, जहां सत्य न हो, सच्चाई न हो। वल्लज़ीन हुम अनिल लग़वी मुअरिदून, मोमिनीन की तारीफ की है खुदा ने कि जब वो किसी जगह पे झूठ उनको नजर आता है तो वहां से मुड़ के चले जाते, वहां से दूर चले जाते। तो आंख का और कान का और जबान का और दिल का और हाथ और पैर की ये सारे सुन्नत बताने का मकसद ये है कि हम एक बेहतरीन जिंदगी गुजारे। और जो चीज हम जबाने के इमाम को ऑफर करते हैं, मौला के हुजूर में मेहमानी भी लाते हैं, हमारी कोशिश क्या होती है, हम एक बेहतरीन चीज जमाने के इमाम को पेश करें। तो जो जिंदगी हम इमाम को पेश करते हैं, जो इमाम की दी हुई है, तो इसके जीने का बेहतरीन अंदाज ये है कि जो इमाम का रास्ता है, जो इमाम का तरीका है, जो इमाम की बताई हुई राह है, उसके मुताबिक जिंदगी गुजारे। फरमाते तो मुनिवर भाई एवी 5 सुन्नत करो देहिमा अने सब ठोर ईमान राख। ये 5 किस्म की सुन्नत अपने वजूद में रखो और अपना ईमान मजबूत रखो, तो नमाज रोजा सब किए सो ही मुसलमान है पाक। तो तुम्हारी नमाज भी हुई, तुम्हारे रोजे भी हुए, और वो ही मुसलमान पक्का पाक साफ मुसलमान है। हुजूर ने अपने हदीस में फरमाया है कि एक नेक इंसान, हुस्न खुल्क से, अच्छे अखलाक का इंसान ऐसा होता है कि जैसे वो दिन भर उसने रोजा रखा है और रात भर उसने खुदा की इबादत की। हुस्न खुल्क से इंसान साइम नहार, दिन भर रोजा रखने वाला, और शब जिंदादार, सारी रात जागने वाला बन जाता है। मशहूर सुन्नी आलिम दीन है जिसको अहले सुन्नत वल जमात में इमाम के नाम से याद किया जाता है, इमाम गजाली कहते हैं। वो जब रोजे का जिक्र करता है वो कहते हैं रोजे की 3 किस्में हैं। एक अवाम का रोजा है, एक खवास का रोजा है, एक अखस खवास का रोजा है। अवाम का रोजा, पब्लिक का रोजा ये है कि अपने मुंह को और अपने जिस्म को उसकी ख्वाहिशात को अदा करने से रोक, ये अवाम का रोजा। खवास का रोजा, खास लोगों का रोजा ये है कि अपने हाथ पैर और जिस्म के सारे आज़ा को गुनाह के काम से रोके रखो, ये खास लोगों का रोजा है। वो कहता है अखस खवास का एक रोजा है, यानी खास में से भी खास लोग हैं, उनका एक रोजा ये है कि अपने दिल को, अपनी नीयत को, अपने ख्याल को खुदा के अलावा बाकी हर चीजों से दूर रखो। यह खस खवास का रोजा। हम खुद ही फैसला करें कि दीन की तालीमात क्या है, हकीकी रोजा क्या है, हकीकी सुन्नत क्या है, हकीकी पाकीज़गी क्या है। असल पाकीज़गी बातिन की पाकीज़गी है और दिल की पाकीज़गी है। और आखिर हुआ तो मुनिवर भाई तमे कलमा पढ़ो मुख से, गुर नबी मोहम्मद नी आल ना पूजो पाए, पण नित नित गतमा जय जिक्र करे, भाई सोही मुसलमान बहश्त में जाए। तो मुनिवर भाई जो मोमन चित वर्णी
ग्रंथ है। इसका जो पाठ मैंने 282 से 289 के पाठ मैंने आपके सामने पेश किए, जिसमें 5 सुन्नत का जिक्र किया। फरमाया गया कि तुम अपनी ज़बान से कलिमा पढ़ो और हुजूर अकरम की जो आल है उनकी खिदमत करो, उनकी ताबेदारी करो, जमात खाने में बाकायदगी से जाओ, मिलो और जिक्र करो। वही सच्चा मुसलमान है और वही मुसलमान बहश्त में जाता है। चंद तालीमात इस हवाले से आपके सामने हमने पेश की। इसमें से जो एक बात अच्छी लगे अपनी ज़बान के हवाले से, नज़रों के हवाले से, दिल के हवाले से, हाथ पैर के हवाले से, उसको अप्लाई करके लेकर अपनी ज़िंदगी में अमली जामा पहनाने की कोशिश करें और देखें खुद हमारी अपनी ज़िंदगी कितनी अच्छी हो जाती है। मौलाना हाज़िर इमाम हमें अपने फरमान पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मौला गज जमात के तमाम गुनाह माफ़ करें, सबकी नेक उम्मीदें पूरी करें, आखिरी दम तक ईमान सलामत रखे, सुखी सलामत व आबाद रखे, दीदार नसीब करें। सलवात पढ़े दिलदार, अल्लाहुम्मा सल्ली अला